Hello everyone, welcome to Learn Knowledge. This is to inform you all that I have started classes for Company Law, JIGL and SBEC for CS Executive new syllabus. Interested students may DM me at our Instagram page. The link for my Instagram page and Telegram channel will be in description box. I have already uploaded the notes used in this video on my Telegram channel, so do check out. Today's video is about the amendments in this chapter, so I will be covering only the amendment part and not the whole chapter. If you want to see the video of the whole chapter, you can click on the I button. Let's start our video. So the tax rates for assessment year 2021-2022 are: for individual HUF, AOP, BOI, AJP, resident or non-resident up to 2,50,000, the tax rate is nil. 2,50,000 up to 5 lakh, the tax rate is 5%. 5 lakh to 10 lakh, the tax rate is 20%. And the income, if the income is in above 10 lakh rupees, the tax rate is 30%. For senior citizens, the tax rate is up to 3 lakh, it's nil. 3 lakh to 5 lakh, the tax rate is 5%. 5 lakh to 10 lakh, the tax rate is 20%. And above 10 lakh, the tax rate is 30%. For super senior citizens, up to 5 lakh, the tax rate is nil. 5 lakh to 10 lakh and above 10 lakh, the tax rates are same, like 20% and 30%. Surcharge: if your income is in excess of 50 lakhs but up to 1 crore, the tax rate is 10%. If your income is above 1 crore but up to 2 crore, the tax rate is 15%. If your income is above 2 crore but up to 5 crore, the tax rate is 25%. And if the income is above 5 crore, the surcharge rate is 37%. Surcharge is levied on the tax and not the income. Note: CBDT has clarified that a person born on 1st April would be considered to have attained a particular age on 31st March. अगर किसी पर्सन का बर्थडे 1st अप्रैल को आता है और वो 1st अप्रैल को 60 ईयर्स कंप्लीट करता है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि उसने 31 मार्च को ही 60 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए और उस पर टैक्स रेट हम ये वाला लेवी कर चलेंगे, ना कि ये वाला. फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, द टैक्स रेट्स आर 30% ऑफ टोटल इनकम. Surcharge is if the income exceeds 1 crore rupees, surcharge is 12% of income tax. यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सरचार्ज जो आपको लेवी करना है वो आपको टैक्स पे करना है, ना कि इनकम वाले पार्ट पर करना है. ये जो आप ऊपर इनकम कैलकुलेट करोगे, आप ये सारी रेट्स लगाकर, ये जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पर आप जो है ये सरचार्ज का रेट लगाओगे. Note: if adjusted total income exceeds 20 lakhs, alternate minimum tax is applicable at 18.5%. अगर आपकी adjusted total income जो है वो 20 लाख से exceed कर जाती है, तो आप पर AMT applicable होगा 18.5% से, other than company. AMT जो है वो कंपनीज पर नहीं लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अदर देन कंपनी. फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000 से एक्सीड नहीं करती है, तो आपका टैक्स रेट क्या होगा? 10% ऑफ इनकम. वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹10,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹20,000. 10,000 से ऊपर है बट 20,000 के नीचे है, तो आपका टैक्स रेट क्या होगा? ₹1,000. और 20% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, यानी 1,000 आप ऐड कर दो जो हमने यहाँ पे निकाला है. 10,000 इंटू 10%, 1,000 आया, ये हमने ऐड कर दिया. उसके बाद 10,000 से जितनी भी इनकम आपकी एक्सीड कर रही है उस पर आप 20% लगा दो और दोनों को ऐड कर दो. वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 20,000 रुपीज़, तो आप 3,000 लगा दो. 3,000 लगाने के बाद 30%, 20,000 से जितनी भी एक्सीड कर रही है उसका आप 30% कर दो, आपका टैक्स निकल जाएगा. फॉर कंपनी, अगर आपकी कंपनी है ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BA, तो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी 25%. इफ़ द कंपनी हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA, टैक्स रेट विल बी 22%. वेयर इट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAB, टैक्स रेट विल बी 15%. टोटल टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ एंड नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन BAA, देन आपकी जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा कंपनी पर वो क्या होगा? 25% का रेट. एनी अदर, इनके अलावा और कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो उस पर 30% का फ्लैट रेट लगेगा और फॉरेन कंपनीज पर रेट लगेगा 40%. ये आपके MCQs में आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो रेट्स याद करके जाइएगा अच्छे से. सरचार्ज हमारा, अगर आपकी कंपनी की इनकम अबव 1 करोड़ है बट अप टू 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी पे रेट लगेगा 7%, फॉरेन कंपनी पे लगेगा 2%. अगर अबव 10 करोड़ है, द टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनी विल बी 12% एंड फॉरेन कंपनी विल बी 5%. नोट: the rate of surcharge in case of a company opting for taxability under section 115BAA or section 115BAB shall be 10% irrespective of the amount of total income.
अगर कोई कंपनी सेक्शन 115BAA या सेक्शन 115BAB को ऑप्ट करती है तो उसके ऊपर जो सरचार्ज है वो 10% लगेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी इनकम कितनी है, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे और उस पर 10% का सरचार्ज लगा देंगे। अ कंपनी इज़ लाइबल टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स दैट इज़ 15%। हमने देखा यहाँ पे कंपनीज़ के अलावा जो इंडिविजुअल्स है उस पर AMT लगता है, जो हमारा कितना लगेगा 18.5% पर, और कंपनीज़ पर लाइव जो मैट है वो कितना लगेगा 15%। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का। अब मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है, आपके ऊपर सरचार्ज लग जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 1000 रुपये ज़्यादा है तो इस 1000 रुपये पर इतना टैक्स बन जाएगा जो 1000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 करोड़ पर टैक्स निकाल लेंगे, उस टैक्स में 1000 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक टैक्स निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पर जो है वो जो इस अमाउंट पर एक्चुअल टैक्स निकालेंगे, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमारा मार्जिनल रिलीफ निकल जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ इनकम टैक्स निकाला, ये इस वाले अमाउंट पर सरचार्ज ऐड कर दिया 15%, ये इनकम टैक्स ऑन इनकम ऑफ 1 करोड़, तो 1, अब ये हमारा टोटल जो टैक्स आ गया। अब यहाँ पे क्या रहा है, 1 करोड़ की इनकम पर टैक्स कितना आता, इतना। मैक्सिमम सरचार्ज पेबल, हमारा सरचार्ज पेबल कितना, अब यहाँ पर हम सरचार्ज कितना देंगे, यहाँ पर सरचार्ज निकल रहा था 4,21,000, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि हमारी इनकम सिर्फ 1000 रुपये से बढ़ी और उसकी वजह से हमारा टैक्स 4 लाख रुपये से बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो 1000 रुपये की इनकम है ना उसी को टैक्स बना दो, उसी को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारा इनकम प्लस सरचार्ज पेबल कितना आ गया, इतना। Thus, in the above case, though the surcharge at 15% is itna. However, since the income of Mr. Ram exceeds rupees 1 crore by just 1000, Ram will be eligible for marginal relief and maximum surcharge will be restricted to rupees 1000 only. अब यहाँ पर हमारी इनकम जो थी वो सिर्फ 1000 रुपये से एक्सीड करी थी, बट हमारा जो टैक्स था वो इतने अमाउंट से इंक्रीज़ कर गया। तो हम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ये अमाउंट ना पे करके आपकी जितनी इनकम बढ़ी है वो अमाउंट को ऐड करके आप वो पे कर दो हमारे पास। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% है, जिसका हमारी जो क्लासिफिकेशन है कैसे है, रेट ऑफ एजुकेशन सेस 2%, रेट ऑफ चेक इज़ 1%, रेट ऑफ हेल्थ सेस इज़ 1%। अब जो हमारी मेन अमेंडमेंट आई है वो आई है सेक्शन 115BAC एंड सेक्शन 115BAD। सो स्पेशल टैक्स रिजाइम फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। तो इंडिविजुअल और HUF के लिए हमने एक स्पेशल टैक्स रिजाइम निकाला है, जिसे हम न्यू स्कीम भी बोल रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, हमारे टैक्स के रेट्स को रिड्यूस कर दिया है। अब रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ टैक्सेस क्या है, अप टू, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, रेट नील रहेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक है तो आपको 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 7,50,000 है, वहाँ पे क्या था 5 लाख टू 10 लाख है तो आपको 20% लग रहा था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 लाख से 7,50,000 तक का इनकम है तो आपको 10% का टैक्स लगेगा। अगर 7,50,000 से 10 लाख है तो 15%, 10 लाख से 12,50,000 है तो 20%, 12,50,000 से 15 लाख है तो 25%, एंड अबव 15 लाख है तब जाकर आपको 30% पे करना होगा। ऊपर वाले केसेस में क्या था, 10 लाख जो हमारी ओल्ड स्कीम जिसे हम बोल रहे हैं 10 लाख से ऊपर ही 30% लग रहा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, टैक्स को 5% बढ़ाते जाओ और यहाँ पे इनकम को 2.5 लाख बढ़ाते जाओ। सरचार्ज, अब यहाँ पे सरचार्ज जो है वो हमारा सेम है, एक्सीड 10 करोड़, ये 37% लगेगा। नोट, द SSC ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ AMT। जो पर्सन हमारा इंडिविजुअल HUF जो भी इस हमारे 115BAC को ऑप्ट करेगा उस पर AMT एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर ऑप्टिंग सेक्शन 115BAC। अगर कोई इंडिविजुअल या HUF जो है न्यू स्कीम के थ्रू अपना टैक्स रेट जो टैक्स पे करना चाहती है तो उसको कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी होंगी। कंडीशंस क्या है, टोटल इनकम इज़ कंप्यूटेड विदाउट क्लेमिंग फॉलोइंग एग्जेम्पशंस और डिडक्शन। जो हमने टोटल इनकम कंप्यूट की है उसके अंदर ये एग्जेम्पशन और डिडक्शंस नहीं होनी चाहिए, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। यानी वो क्या क्या डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है, लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस, ऑफिशियल एंड पर्सनल अलाउंस, अलाउंसेस टू MPs MLAs, allowance for income for minor, deduction for units established in SEZ, standard deduction, entertainment allowance, professional tax, interest on housing loan, additional depreciation for new plant and machinery, deduction for investment in new plant and machinery in notified backward areas, deduction in respect of tea, coffee and rubber business, deduction in respect of business consisting of production of petroleum or natural gas in India, deduction for donation made to approved scientific research association, deduction for payment made to an Indian company for doing scientific research which may or may not be related to business, deduction for donation made to university, college or other institution for doing research in social science or scientific statistical research,
डिडक्शन फॉर डोनेशन मेड फॉर और एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in respect of certain specified businesses, deduction for expenditure on agriculture extension project, deduction for family pension, deduction other than section 80JJAA, 80CCD subsection 2, section 80LA for unit located in IFSC। यानी कि जो भी पर्सन हमारी न्यू स्कीम को ऑप्ट करता है उसको ये सारी डिडक्शंस जो है वो अलाउड नहीं होगी। उसकी जो टोटल इनकम कंप्यूट करनी है ये सारी डिडक्शंस को हटा के कंप्यूट करनी है। टोटल नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अदर देन एडिशनल डेप्रिसिएशन विदाउट एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन। हमारी जो टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें कैलकुलेट क्या करनी है, आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्लेम करना है अदर देन, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं करना है एंड उसमें हमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट नहीं करना है। एडजस्टमेंट शेल बी मेड फॉर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट जो हमारी होगी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जो हमारी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है उसको कंसिडर करने के बाद हमारी टीआई कैलकुलेट होनी चाहिए। इन केस द एसएससी हैज बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, दिस ऑप्शन शेल बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न्स ऑफ इनकम। अगर एसएससी के पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो ये ऑप्शन हमें कब एक्सरसाइज करना है, जिस दिन हमें रिटर्न फर्निश करनी है उस दिन या उससे पहले हमें जो है ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है। Once the SSC has exercised the option for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year। अगर SSC ने एक बार ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्ट कर लिया ये वाला ऑप्शन, तो उसको बाद में अलाउ हम नहीं करेंगे कि आप जो है इस ऑप्शन को विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार अप्लाई ऑप्ट कर लिया इस हमारी जो ऑप्शन को प्रीवियस ईयर में, तो नेक्स्ट किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए आपको विड्रॉ करना अलाउ नहीं होगा। The option once exercised for any previous year can be withdrawn only once in subsequent previous year and thereafter he shall never be eligible to exercise his option again। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर किसी पर्सन ने एक्सरसाइज कर लिया ये ऑप्शन और बाद में वो चाहता है कि उसको जो है ये ऑप्शन विड्रॉ करना है, तो वो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में आपने ये ऑप्शन लिया था उसमें आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, उसके किसी भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आप विड्रॉ कर सकते हो। बट उसके बाद क्या होगा, उस पर्सन को हम दोबारा अलाउ नहीं करेंगे सेम ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव एनी बिजनेस इनकम। एक केस में कब अलाउ हो जाएगा, अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है तब हम उसको अलाउ कर देंगे कि आप इस ऑप्शन को फिर से ले सकते हो। If SSC does not have business or professional income, the option must be exercised along with the return of income for every previous year। अगर हमारे पर्सन SSC की बिजनेस या पर्सनल इनकम नहीं है तो ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, जब भी वो रिटर्न इनकम फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए, उस टाइम पर वो हमेशा उस ऑप्शन को देख सकता है। हर बार वो ऑप्शन उसको एक्सरसाइज करना है या नहीं वो कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल टैक्स रिजाइम एप्लीकेबल टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पर क्या पढ़ा कि हमारा जो स्पेशल टैक्स रिजाइम था ये किसके लिए था, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ्स के लिए, सेक्शन 115BA(c). नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 115BA(d), ये किसके लिए, टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एन ऑप्शन टू द रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू गेट टैक्सड एट द रेट ऑफ 22% प्लस 10% एंड 4% सेस। क्या बोल रहा है ये ऑप्शन, क्या बोलता है कि हमारी जो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो टैक्स किस रेट पर दे दें, 22% प्लस उस पर 10% सरचार्ज लगेगा अगर एप्लीकेबल हमारी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है तो, और 4% का सेस लगेगा। An option to opt for taxation under newly section 115BAD of the Tax Act with effect assessment year 2021 to 2022। ये ऑप्शन किस लिए है हमारा, असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए। द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फॉर द सेम और अदर प्रीवियस ईयर। एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो हमारे सेम या किसी सब्सिक्वेंट उसके लिए आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते ऑप्शन को। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट क्लेमिंग फॉलोइंग एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस। जो हमने ऊपर एग्जाम्पशन डिडक्शंस पढ़ी थी, सेम डिडक्शंस ये हमारी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हैं। हमारे यहाँ एडिशनल क्या है, डिडक्शन फॉर डोनेशन मेड टू नेशनल लेबोरेटरी और IITs एक्सेट्रा फॉर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू बिजनेस। कोई भी हमने डोनेशन दी थी नेशनल लेबोरेटरी या IITs को लिए, उसके लिए हमने जो डिडक्शन क्लेम करी है वो अलाउड नहीं होगी। और यहाँ पर ऊपर जो हमारे डिडक्शन थी चैप्टर 6 की वो हमारी 80JJA वगैरह थी। यहाँ पर क्या है, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम अदर देन स्पेसिफाइड अंडर 80JJAA। यहाँ पे सिर्फ ये वाली सेक्शन जो है वो हमारी इंक्लूड की गई है, लेकिन ऊपर हमारी 4 सेक्शंस और इंक्लूड किए गए हैं, 80JJAA, 80CCD2, 80LA। सो ये डिफरेंस है यहाँ पर।
Where a cooperative society exercises option for availing benefit of section 115 BAD, it shall not be allowed to claim set off of any brought forward losses or depreciation attributable to any restricted assumption or deduction in the assessment year for which the option has been exercised and for any subsequent assessment year. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 115 BAD हमारा जो है एक्सरसाइज कर लिया है तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे सेट ऑफ करना, कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना अलाउ नहीं करेंगे। कब? जिस भी ईयर में आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है या उसके अगले वाले ईयर, सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर सकते। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, कोई एसएससी जो क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो इंडिया का, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, जिसकी टोटल इनकम जो है 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100%। उसको डिडक्शन कितनी अलाउ होगी? इक्वल टू 100% ऑफ सच इनकम टैक्स और एन अमाउंट ऑफ 12,500 विच एवर इज लेस। 12,500 तक की डिडक्शन उसे मिल सकती है। अगर उसकी इनकम जो है 4 लाख है तो 4 लाख पर जितना भी टैक्स बनता है वो पूरा डिडक्ट हो जाएगा। हमारे 5 लाख पर हमारा जो टैक्स, अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है तो हमारा टैक्स बनता है 12,500। ओके, तो 12,500, अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो 12,500 का पूरा रिबेट उसे मिलेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम है 3 लाख या 4 लाख तो जितना भी टैक्स बन रहा है वो पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, यानी कि उस पर्सन का टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा उस ईयर के लिए। अब नेक्स्ट क्या है? MCQs फ्रॉम ICSI मॉड्यूल, ये हमने कवर किया अपनी प्रीवियस वीडियो के लिए। सो दैट्स